they completed, they used them in a totality with all the Rasgun Vipak which is being used in the ingredient form of the medicine. This is what the submission is. Thank you so much, and we are ready to go for the next webinar topic on 988. Yeah. So over to Pawan Sharma. Thank you very much, sir. मदर नेचर, पुरुष और प्रकृति का आयुर्वेद में हमारे यहाँ विशेष महत्व बताया। पूरी जीव की संयोग की अवधारणा हमारे यहाँ पुरुष और प्रकृति के संयोग से है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। वी आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर हर तरीके से, लेकिन नेचर भी अपना बदला ले लेता है। टुडे वी हैव सीन एग्जांपल ऑफ Shimla, Himachal Pradesh, where the jungle of concrete has grown up and the nature has just destructed everything. So we should not play with the nature. In our 988 webinar, we welcome you all on World Nature Day. Thank you very much for joining. We have great speakers, Sekat ji, Dr. Alok Sharma ji. Sekat ji is from Alberta, Canada. Alok ji from Meerut. Professor Meera Kashyap ji from Moradabad. Dr. Naveen Singhal ji is with us rightly from the starting of last webinar. So thank you, Naveen ji, for joining. And Dr. Amrita Mishra. Thank you all. Thank you very much. Now I would like to request Professor V.K. Agnihotri ji for his speech. I am really thankful to Professor Pawan Sharma ji, as he is so sensitive for all the developments happening inside the body and outside the body, that is the environment. And so goes the case with the nature. As we talk about the Mother Nature's status on the very good occasion of World Nature's Day, we have to just remind that today, at about 11 to 12 between, the residents of NCR experienced poor intensity of earthquake episode at about 11:30 to 12 something. They experienced, it means that was the intensity was there to be experienced. Some office person came out of this, some sort of this havoc and all that. So we are supposed to be careful for the nature, as nature is nursing us. We are getting nurtured by the nature and all the products of nature. So it becomes our moral duty as well as our social responsibility to go for the development of nature without harming the status of it, because it's nature. Nature's status is natural. So we are supposed to be friendly, nature friendly, and not to disturb the nature. May it be rivers, jungles, trees, plants, desert, whatever the sites. We are supposed to avoid the garbages, avoid the all sorts of this thing, to avoid the say status of the our dirt, to maintain the cleanliness. So nature will definitely, we are supposed to adore nature, and nature will give a lot of good fruits for our life, for our respiration, for our oxygen availability and all that. So that's why so many things are there which are coming from nature or as a representative of nature, and we adore. May it be Chandrama, Suraj, Ganga ji, Tulsi ji, Bargat, people, whatever they are, we still उनके पास हाथ जोड़ते हैं, जाते हैं, करते। भाव यही है कि हम नेचर से अपना तादाद में बहुत ही बड़ा मानवीयता के साथ में रखते हैं, और नेचर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे प्रति, हमारे स्वास्थ्य के प्रति, हमारे विश्व के स्वास्थ्य के प्रति, वातावरण के प्रति अपना ऐसा ही योगदान और आशीर्वाद देती रहे। तो हमें नेचर के प्रति निश्चित रूप से कर्तव्य परायण होना चाहिए। कुछ इन्हीं शुरुआती शब्दों के साथ में हम अपने आदरणीय ऋषि मुनि जी जो आज ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे उनके सभी वक्तव्य और उद्बोधन सुनना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति में तो ऋषि मुनि ही महात्मा ही रहते हैं। संत महात्माओं का स्थान ही प्रकृति है, चाहे वो गुफाएं हो, नदी किनारा हो, और चाहे वो पर्वत हो या समुद्र तट हो। अगस्त मुनि जी को ले लीजिए,
सब अपने हमारे ऋषि मुनि ही थे जो प्रकृति के प्रेमी थे, और हमें प्रकृति की प्रेम को सुनने के लिए मुनियों के ही सहारा लेना पड़ेगा। तो आज के समस्त ऋषि मुनि और हमारी विदुषी महिलाओं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओवर टू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। Thank you very much, sir. Thank you very much. Very nicely said. प्रकृति, इसीलिए मैंने मदर नेचर नाम रखा। I would like to communicate my sincere regard and thank you for Dr. Tharakon, and would like to request him to join again and again. Please do join. Welcome. Thank you very much. So now we will be discussing on Mother Nature. Great. I am with us Dr. Naveen Singhal ji, who has joined much earlier in last webinar. So I would like to invite Dr. Naveen Singhal ji, Dean. Dr. Naveen ji, welcome. सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन सिंघल बोल रहा हूँ। मैं DIT विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और आप सभी के वेबिनार से मतलब प्रेरित होकर जो आप लोग मेरे को इसमें बोलने का मौका देते हैं, तो मैंने भी अभी अपने एक PhD नए स्कॉलर को एक प्लांट दिया है, दही मन आपने नाम सुना होगा। एक प्लांट है दही मन, वो उसको डायबिटिक एक्टिविटीज की इन विवो एंड विट्रो जो है प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए उसको PhD का टाइटल दिया है। तो वो बच्चे को मैंने कहा भाई देखो, अभी हम लोग आयुष समृद्धि के साथ जुड़े हुए हैं, आपको कोई भी दिक्कत होगी आप इस पे काम शुरू करिए और नेचर के साथ जुड़िए। सर, मैं आज ये बताना चाहूँगा कि जो आज आपने टॉपिक रखा है मदर नेचर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके विषय में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा एज ए एनवायरमेंटलिस्ट एंड केमिस्ट, कि जो हम ये बोलते हैं कि हमारा मदर अर्थ, लेकिन मदर अर्थ की केयर करने में हम कितनी सावधानी बरतते हैं, कितना हम अपना श्रेय धरती को देते हैं, ये बड़ा ही अजीब विडंबना है। जनरली ये देखा गया है कि आदमी जिस डाली पर बैठता है उसी को काटता है, और इसी को काटने के बाद फिर बोलता है ले यार, अगर ये पेड़ ना काटता तो मैं शायद आज जो है इस पेड़ के नीचे बैठता और इस पेड़ के फल मुझे खाने के लिए मिलते। आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन में थोड़ा इसको कंपैरेटिव स्टडी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने दिन में ही देख लिया था कि आपने जो टॉपिक दिया है। तो मैं कंपैरेटिव स्टडी आपकी इस तरह से बताना चाहूँगा कि जो हमारा युवा है, आज की डेट में हमारा युवा चाहता है चकाचौंध लाइफ। उस चकाचौंध लाइफ में वो चकाचौंध लाइफ कुछ ही समय की है, उसके पश्चात उस चकाचौंध लाइफ का जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, ये शायद हमारे आजकल युवा ध्यान नहीं देते। एक समय मैं भी था जब मैं ये सोचता था नहीं, ये यहाँ से पेड़ हटाइए, ये पेड़ गमला यहाँ मत लगाइए, और ये पानी मत बहराइए। लेकिन आज की और पानी खूब, कभी किसी टाइम मैं खड़े होकर अपनी गाड़ी पानी से धोता था, लेकिन आज की डेट में मैं गाड़ी साफ करने वाले को बोलता हूँ कि बेटा पानी का कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि अभी मुझे ये पता चल चुका है कि मदर अर्थ पर अगर कोई प्रलय आने वाली है तो वो सबसे बड़ी प्रलय सबसे पहले पानी की आएगी। आज जैसे दिन में देखा, मैं एक मंच पर बैठा हुआ था और एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें हमने 4 राज्यों के जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको बुलाया था, और उनकी बातों को जब मैंने सुना तो इस टॉपिक के
सापेक्ष मुझे कुछ बातें देखने को मिली कि कुछ बच्चे जो 12वीं क्लास में पहुंच चुके हैं और उनको अभी तक ये नहीं पता है कि आरओ का वाटर क्या होता है और किस प्रकार अगर पानी में, पीने के पानी में अगर कोई दिक्कत है या कोई मटपहलापन है, स्वाद नहीं है, तो उसको बॉयल कर सकते हैं, बॉयल करके पी सकते हैं। आज भी उनको ये प्रॉब्लम है। मतलब वो लोग अभी भी इस चीज से अनभिज्ञ हैं कि हमारी सेहत के लिए अच्छा पानी, अच्छा खान पान और रोजाना नहाना सबसे, देखिए खान पान उनको मिल जाएगा, उनको अच्छा रहना मिल जाएगा, लेकिन जो वो रोजाना नहाने का जो कंसेप्ट है वो उन बच्चों ने आज मेरे वक्तव्य के बाद समझा कि डेली स्नान करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। हमारी जो मदर नेचर है वो इस चीज को भी देखती है कि आप मुझे भी सुंदर रखो और अपने आप भी स्वच्छ रहो। ऐसा नहीं कि आप अपनी जो है क्या नाम कमरे में झाड़ू लगा लीजिए और 4 दिन तक आप बिना नहाए उस कमरे में बैठे रहें और डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते रहें, मार्केट में जा रहे हैं डिओ लगा रहे हैं, और क्या होगा इससे, व्हाट इज द बेनिफिट। जो हम डीओ इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ उस डीओ का, ऐसा नहीं मैं मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन जब हम उसको लगा के बाहर निकलेंगे तो वो जो हमारे अल्कोहल के फ्यूम्स हैं वो सब हमारे मदर अर्थ में जाएंगे। मैंने देखा, अभी एक मंदिर में मैं गया था कि पंडित जी ने मेरे को चंदन का तिलक लगाया और मैंने शाम तक उसकी जो महक अपने माथे से महसूस की, तो मतलब इतना मन प्रसन्न हुआ। तो वो बोले कि देखो बेटा, ये हम बनारस से मंगाते हैं चंदन, और ये बिल्कुल प्योर चंदन है, और इसमें जो खुशबू आपको आ रही है, जो शाम तक इसकी खुशबू है, वो एक उन्होंने मेरे को बताया यारा यारा कोई मटेरियल है जो पूर्णतः औषधि है, जिसको वो उस चंदन में मिक्स करते हैं, और उसके मिक्स करने से जो है ये खुशबू सारे दिन रहती है। तो मैं तो आप सभी लोगों से, जो हमारे जो वक्ता यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, मैं यही बताना चाहूंगा कि हम सब लोग अपने घर से ही इस चीज की शुरुआत करें कि हमें अपनी मदर नेचर को कैसे सेव करना है। अगर मैं नहीं नहाऊंगा या भोजन को बिना पकाए खाऊंगा या जो है पेड़ पौधे काटने में व्यस्त रहूंगा, तो बच्चे जो छोटे हैं वो भी कहेंगे कि नहीं अच्छा है, पानी पी लो यार, कोई सा भी पानी है इसको पी लीजिए, ठीक। लेकिन अगर हम स्वच्छता की ओर बढ़ेंगे तो हमारी मदर नेचर में जो हमारी सुविधाएं हैं उसको ग्रो करने का मौका मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मदर नेचर को ग्रो करने की आती है वो है हमारा ग्रीनरी। ग्रीनरी को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो अभी सर ने बताया कि बरगद के पेड़ लगाएं, पीपल के पेड़ लगाएं। सर, बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ लगाने से मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में मिलती है। और मैं अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि इस विषय पर बहुत बोलने के लिए है लेकिन और वक्ता भी हैं बोलने के लिए, तो मैं उन सभी को साधुवाद देता हूं और सर को मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि सर ने मुझे यहाँ मौका देते रहते हैं बोलने का अपने उसमें। और धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हैबिटेट डे पे बोलेंगे कुछ? जी बोलेंगे सर, निश्चित बोलेंगे। थैंक यू।
So now I would like to request Dr. Sekat Kumar Basuji. Sekat Kumar Basu. Welcome. Am I audible to you, Dr. Sekat? Welcome. Hello, Dr. Sharma. Thank you so much for your warm invitation. Welcome, welcome. Welcome. Thank you so much. Can I get started? Yes. Okay. Thank you. I extend my sincere gratitude one more time to the organizers for giving me this opportunity for talking about Mother Earth. Well, one of the most important part is that we are talking about one Earth, one family, one planet, all of us together joining hands, thinking about the whole Earth as one family. But if we truly look into our world, we are a member of a divided house. Most of the countries are divided into various blocks. We represent various economic groups. There is the division of First World and Third World, or G20 or G77, and BRICS and blocks and whatnot. The whole world is every day getting divided into more and more of economic blocks, of geopolitical blocks. And we all are saying in one voice that we love Mother Earth, but the sad part for Mother Earth is that she belongs to none. All the problems of the environment that we are having right now, particularly with respect to global climate change and particularly with respect to global warming, which is giving us really serious goosebumps to think about what is happening. Recently, scientists have reported that we are having flowers blooming in the Antarctica. Mostly, the blooming of flower is the advent of spring, is the advent of summer. It is related to fertility, it is related to poetry and literature. But why were we so worried about flowers blooming in Antarctica is because it's clearly suggesting that the global temperature is rising in such an extent that where no green plants could have ever grown, there are plants that are, if they're blooming under laboratory conditions in Antarctica, that means are deadly news for the entire world, which means in one hand, that the global warming is enhancing and encompassing the entire Mother Earth, and that it is slowly restoring and destroying the ice sheets and the ice blocks in Antarctica as well as in Arctic. Huge sections of glaciers in Greenland are vanishing. And where this water is going, this is adding to the volume of the water of the global ocean. And we are seeing inundation of various low-lying areas. There have all the island countries or the contingent of island countries that we have around all the oceans are being very seriously threatened by the fact that we are impacted by the rising sea level. Various low-lying parts of even India, Bangladesh, and even adjoining to where we stay, we are seeing within our lifetime that we are getting submerged. The level of water is increasing. One very interesting talk that we had during the recent conferences that was discussed, for the division between the global north and south, the US representative talked about providing huge amount of money to the island countries for their sustenance in exchange for support to US for many of their initiatives and action down in the region, which is mostly not environmental, but geopolitical in range. But one of the very interesting things that was said by the Maldives president is that, sir, we are very happy to receive your dollars. We are a corrupt country and we are very happy to receive your dollars. But tell me in which bank we are going to put that money, because the banks will be underwater. So the message is that no matter what help you are extending, unless we take care of the environment seriously and comprehensively and as one family, there is very little future opportunities for all of us. We need to understand that. Sometimes we see that, even in Canada today, there is huge forest fires going on, which is consuming hundreds and thousands of millions of hectares of forest. And one of the reasons for this is that there has been a lack of rain for several years, drying the forest to such an extent that any lightning is causing very serious forest fires. And the forest fires in United States and Canada are so devastating that is engulfing cities, towns, road, highways,
One of my very friend just recently survived from a forest fire accident where he had to evacuate his house at 2 a.m. in the morning, and he was running through the forest along with wild animals because there is forest everywhere. And he told me that there was even forest on the asphalt metal road, so you cannot even drive through the car. The temperature was so high that the top of the road caught fire. So hundreds and thousands of cars that were parked on those roads or were stranded on those roads got burnt. There has been death, there has been serious injuries. So these are happening in highly developed countries, which are rich countries. So what can we expect for developing and underdeveloped countries? It is really going to be a very serious challenge unless we take initiatives for purposes that serves or caters to the whole world. Now, this is like we always said that the world is turning into a global village from an economic perspective. But today, from an ecological and environmental perspective, we have learned that we are indeed one earth. When there is problem in Canada, today or tomorrow, this environment is going up to catch up in India. If we have problem in Indonesia, today or tomorrow, similar problems are going to happen in far-reaching parts of sub-Saharan Africa and Brazil. So it is time that we need to push back our geopolitical differences, our needs for industrialization, agriculture, and think about the environment and our long-term survival. All of us are concentrated so much today on this present world in our short-term gains. We are looking for the growth of industries. We are looking for the expansion of agriculture. Our population is expanding quite humongously, which is alarming. But unfortunately, not just India, in any country, if you take any initiative of population control, unless it is happening naturally, it is being resented with opposition from various political parties in the democratic system. Now, everyone has the right to protest, but we need to think where we are protesting or where our religious rights, social rights, economic rights, and environmental rights fused together, giving us one question as our survival rights. We have to answer to our next generation what we are leaving for them and to raise their next subsequent generation and the generations after. If we are exhausting planet Earth through mining, through exploration, through industrialization, rapid spread of agricultural, destruction of forests, increasing of infrastructure way beyond human imagination, including, like, for example, China is a devastating country that is taking initiatives in creating mega structures in highly ecologically sensitive areas across Tibet and other parts that is going to dry up the Brahmaputra River that starts from China, moves into India and Bangladesh as Meghna, or Indus Valley, Indus rivers that moves from China, Tibet into Pakistan, Afghanistan, Pakistan and India. All these are being put into very serious threat by gigantic constructions that China is undergoing to not only to generate more hydroelectric power, but also for the purpose of geopolitical control on the adjacent neighboring countries. So if you have neighbors like this who are megalomaniac and do not respect or do not understand the importance of the environment, has no respect for the neighbors, or talks about a global order where there is only place for their country and no other countries can survive in that area, a river or a mountain or a valley or a plateau, and particularly case of rivers and oceans, it does not belong to one country, does not belong to one culture, does not belong to one tradition. We have to share this, and we have survived as human civilization because of our initiative of sharing and caring for hundreds and thousands and millions of years of human evolution. Now today, if we become so greedy that we are only concerned for ourselves and not looking beyond our own needs, chances are that our own actions or inactions, fortunately or unfortunately, will write the destruction of our own kind on the walls. And we could see those signs happening in various parts of the world. China's environmental degradation is monumental. They are hiding many of the information, the quality of the cities, the air quality, the water quality. Because of this extensive infrastructural development in China, the degradation of the environment has been beyond imagination. They are still spending millions of dollars to bring those control and bring those destructive changes that they have incorporated into the environment. And this is a lesson for the whole world to learn. Like, if you are too greedy, if you are focused only on the materialistic goal for your life, you have no respect for Mother Earth, Earth will take revenge today or tomorrow.
because Earth also has a carrying capacity. If you have a space that can accommodate 5,000 people, and if you are loading 1 million people in that, then definitely the system is going to collapse. Unfortunately, due to geopolitical destabilization, genocides, immigration, migration, illegal migration in particular, and people being forced from one country to another because of war, political instability, lack of economic opportunities, as has been happening in the Middle East, where people are moving into various countries, they are bringing environmental catastrophes and also death and destruction. Many people are moving into the forest for their survival, as because there is very little opportunity in their own habitats where they have lived for a long time. The major wars are being engaged in various parts of the world, which also adds to the pollution. So while coming back to the same question, when we talk about our earth or Mother Earth and we need to protect, we know, but we are educated and we are aware. Unfortunately, we are not sensitive enough to take responsible steps. As I mentioned, this is not just a case of one country. India or China or America alone cannot make a significant global impact to reduce the global rise of temperature. All the countries, all the 197 to 200 countries that participate in COPE or that participate in are members of the United Nations or are member of the international organization and recognized as nation states, needs to come together, make changes together. Without this global cooperation, communication, coordination, and collaboration between all the nations, care for Mother Earth is only on a piece of paper or a poster. We will not be able to make significant changes by making small changes here and there. They are inspirational. They are definitely should be encouraged, but they cannot make mega impacts unless all of us decide to move our differences, push our economic interests on one side, and look towards humanity, look towards our long-term future, and decide to take long-term care for our earth. We are already quite late in this process, whether we are in a developed country, whether we are in a developing or underdeveloped countries of Asia, Africa, or Latin America, or we are living in Western democracies in Europe, European Union, Australia, New Zealand, or in North America. All of us share this planet and we have finite resources. Unless we wish to share and care, unless we wish to exchange technologies among one another to help each other community to survive, we are coming or going through a struggling period. And unless we decide to cooperate, we'll continue to struggle. And Mother Earth will be crying and looking at us and will be belligerent and will continue our inactions or actions that is harming our long-term existence. Hence, I finish with this request to all that we all need to work together on a common platform, removing our differences for protecting Mother Earth. If this earth is not there, we are putting our human civilizations and questions into questions as whether and how long we are going to survive down the line. As humanity has spread across this planet, it is the responsibility of the humanity too to protect Mother Nature. Hail Mother Nature. Thank you very much for inviting me. Greatly appreciated. Look forward to get back to your platform one more time. Thank you, Dr. Sharma. Thank you, thank you, thank you. Tomorrow again, we will be meeting on Habitat Day. Sure, at sure. 10 PM. Kindly put me on the 9:30 block. It will be easier. I will have some meetings earlier, so this will be a convenient time for me. After 10 at 10 PM. Okay, then I have no problem. Thank you so much. You are so considerate. So much appreciated. God bless you. God bless. Thank you. Agnyatri sir. Really, each and every word spoken by Dr. Basu itself a great importance. Lastly, he told that we should unite for the cause of Mother Nature or Mother Earth. Very naturally, if we will overlook or ignore, definitely where will the place we will stand or our generations will stand. For that, for the greater cause of the safety and availability of air and space, we should be careful and we should be united, though we are already late, as he told. Thank you so much, Dr. Saket. Whenever you come, you really throw light on such a sensitive points where every human must get motivated and moved to do something at his own efforts. Thank you so much, sir. And over to Pawan Sharma. You are most welcome. Thank you, sir. Thank you. Now I would like to request
हमारे साथ मीरा कश्यप जी हैं। आदरणीय मीरा कश्यप जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मीरा कश्यप जी, मीरा जी, नमस्कार। सुतपा जी, वेलकम। मीरा जी नमस्कार। आर वी ऑडिबल टू यू? मीरा जी की कहीं प्रॉब्लम है। मैं अमृता मिश्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अमृता मिश्रा जी। वेलकम, वेलकम डॉक्टर अमृता जी, वेलकम। ओह सॉरी, प्लीज बेटा। दोनों लोग आ गए। मीरा जी नमस्कार। मैं प्रार्थना करूं अग्निहोत्री जी समझ। अब देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ, दोनों ही हमारे इनवाइटेड हैं अपने समय की उपलब्धता के हिसाब से। और आप म्यूट है मैम। एक्चुअली अभी अमृता जी कह रही थी, हमें तो पता नहीं था, हम तो 8 बजे से ही जुड़ गए। हमने कह रहे 9:30 का है, और मैडम मीरा जी को हमने अभी इनवाइट किया था, कॉल किया था। कोई नहीं, 10-10 मिनट में हो जाएगा, कोई 10 मिनट का आगे पीछे नहीं है। ठीक है, आप आपस में टॉस कर लीजिए किसने पहले मीरा जी बोलेंगे? ठीक है, थैंक यू। मीरा जी, आप वेलकम, आपका स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति शुरू करिए। प्रोफेसर मीरा कश्यप जी। हाँ जी, आप अपनी प्रस्तुति शुरू करिए। अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। अनम्यूट है। हाँ ठीक है, स्वागत है। आ गई आवाज आपकी, आ गई, स्वागत जी जी सर। जी, नमस्कार जी सर, प्रणाम सर। जैसा आज विश्व प्रकृति दिवस है, मैं 2 पंक्तियों से शुरू करूंगी सर। काट दिए सब पेड़, मिले अब छाया कैसे, उड़े सड़क पर धूल मगर फिर भी जीना है। चाह रहे थे आम फले बगिया में अपने, होते रहे बबूल मगर फिर भी जीना है। सर प्रकृति है तो हम है। अगर प्रकृति को हम जीवन दान नहीं देते हैं, हम उसके सारे संसाधनों का दोहन करते रहेंगे, तो प्रकृति हमें भी नहीं बख्शेगी। सर वेदों में एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि हे धरती माँ, हम आपसे जो भी लेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे हम लौटाएंगे आपको। लेकिन इन सारी बातों को हम भुला दिए। विकास के दौर में रफ्तार इतनी तेज हमारी है कि हम जल, जंगल और जमीन को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारी धरा, जो धरती कहलाती है, धरती माँ है, धरती यानी धारण करती है, वो सारी इस प्रकृति में जितने सब हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, वो सबको धारण करती है, यानी वो संपूर्ण है। आजीवन अगर हम अपने लोभ को छोड़ दें तो आजीवन इतने संसाधन हैं हमारी धरती के पास कि हम अपनी जीविका चला सकते हैं। लेकिन हम मानव जो हैं यह नहीं चाहते हैं कि हमारी धरती बचे। और आप देखिए कितना प्रदूषण है, पूरा का पूरा पर्यावरण जो है, वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। चाहे वह वातावरण के किसी भी रूप में हो, अभी उसका भयानक रूप हमें देखने को मिला है कि हिमाचल प्रदेश में तमाम तबाही आया है। बारिश होती रही तो बारिश ही हुई, या पहाड़ खिसक रहे हैं, दरक रहे हैं, नदियों में पानी इतना अधिक है, प्रबल है कि बाढ़ की स्थिति है। और कहीं बहुत सूखा है, जहां कभी बाढ़ आते थे वहां एकदम सूखा है, जहां कहीं सूखा है वहां बहुत ही ज्यादा बरसात हो रही है। तो ये इस ग्लोबल वार्मिंग का ही दुष्परिणाम है और हमें सबक लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम इन चीजों को
रोकेंगे नहीं, प्रदूषण इस धरती पे बढ़ता जाएगा। और जब प्रदूषण बढ़ेगा तो जो प्रकृति है वह अपने आप को संतुलित करने के लिए मनुष्य को हानि अवश्य पहुंचाएगी। जैसा कि आपने भी देखा होगा सर, आज भी हम लोग बैठे हुए थे और 2:30 बजे के समय लगा हिलने पंखा, हम भी हिलने लगे सर बेड पे बैठे बैठे। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि भूकंप आया भूकंप, हम लोग तुरंत बाहर निकले। तो ये सारी चीजें इसी के दुष्परिणाम है। तो जिसके लिए सर जलवायु परिवर्तन के प्रति हमें जागरूकता बढ़ानी होगी, उसके लिए पेड़ पौधों को लगाना होगा। और जैसा कि इस बार का थीम 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाते हैं और उसका एक थीम होता है हर वर्ष, इस बार उसका थीम है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। अब देखिए थीम कितनी अच्छी है, वन और आजीविका। वनों को बचाइए, और अगर वन बचेंगे, जमीन बचेंगी, जल बचेगा, तो मनुष्य का जीवन बचेगा। और इस ग्रह को, लोगों और ग्रह को कायम रखना, यानी लोगों को बचाने के लिए, इस ग्रह को, इस धरती को बचाना है, तो हमें अपने लोभ का संवरण करना होगा। हमें इस संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए। इनको बचाने के लिए हम जितने भी प्रयास कर सकते हैं, चाहे व्यर्थ के पानी ना बहाएं, और छोटे पौधे, अगर मकान बड़े नहीं है सर तो उसको छोटे पौधे लगाएं या अपने आसपास वृक्ष लगाएं, और लोगों में जागरूकता फैलाएं किस तरह से हम अपनी धरती को बचाएं। हम अनावश्यक किसी भी चीज को ज्यादा हम खर्च करेंगे, चाहे वह जल हो, वनों का कटान हो, नदियों को रोककर बांध बनाना हो, ये सब सारी चीजें हमारी प्रकृति के लिए हानिकारक हैं। और अगर हमें अपने प्रकृति को, अपनी धरती माँ को बचाना है, तो हमें अपने जीवन को बहुत ही शांति प्रिय ढंग से जीने के लिए हमें अपने विकास तो करना है सर। विकास के बिना तो संभव नहीं है मानव जीवन, विकास भी होगा, लेकिन विकास की रफ्तार में हम ये ना भूल जाएं कि हम इस धरती को हानि पहुंचाए। अगर विज्ञान है, विज्ञान में चमत्कार भी होते हैं, विकास भी होता है, लेकिन कहावत भी है कि विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है। कहीं ना कहीं आज हर मनुष्य इस अभिशाप का दंश झेल रहा है। जैसा कि अभी देखा, पिछले 2-3 वर्षों पहले कोरोना था। जब कोरोना में सारी चीजें बंद हो गई, तो नेचर अपने आप, प्रकृति बिल्कुल साफ सुथरी, चाहे वो नदियों के रूप में हो, पेड़ पौधों के रूप में हो, सारी चीजें जब बंद होने के बाद कोई धुआं धूल नहीं, सब प्रदूषण एकदम शांत हो गए थे, तो पेड़ पौधे भी हरे भरे हो गए, नदियों का जल भी साफ हो गया, वायुमंडल भी स्वच्छ हो गया, क्योंकि सारे वाहन रुक गए थे। तो इसके मतलब यही है कि हम मनुष्य जो है, अपने सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए जितने संसाधनों का हम चाहते हैं कि हम बस घर में बैठे बैठे सारी सुख सुविधाओं का, सारे आराम को हम प्राप्त करें, लेकिन हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि इससे हमारा पर्यावरण जो है कितना प्रदूषित हो रहा है। और अब अगर हम नहीं, तमाम जलवायु परिवर्तन को, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए तमाम विश्व के विकसित और विकासशील सारे देश लगे हुए हैं कि किस तरह से प्रदूषण उत्सर्जन को कम किया जाए, लेकिन हम कम करने के बजाय और भी उसको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, अपने भौतिकवादी सुखों के ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक इन सारे प्रदूषणों पर, उसके दुष्परिणाम पर हम कभी भी लगाम नहीं लगा सकते। हर घरों में आप देख लीजिए, एक नहीं जितने व्यक्ति हैं, जितने परिवार में जितने व्यक्ति हैं, सबके पास
पहले साइकिल होती थी, स्कूटर होते थे, मोटरसाइकिल, लेकिन अब गाड़ियां हैं, कार हैं। एक अकेला व्यक्ति अपना जा रहा है, लेकिन वो अकेला व्यक्ति कितना प्रदूषण फैला रहा है। तो अब हमें, विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां उन्होंने इन सारी चीजों को छोड़कर साइकिल पर आ गए हैं कि हम यदि साइकिल चलाएंगे तो प्रकृति हमारी जो है सुरक्षित रहेगी, प्रदूषित नहीं होगी। तो हमें ऐसी सुविधाओं की ओर ध्यान देना होगा जिससे हमारे देश में विकास भी हो सके, प्रकृति का संरक्षण भी हो सके, संवर्धन भी हो सके, और जल भी बचे रहे। जिस तरह से जल कम होते जा रहे हैं, पीने का पानी, समुद्र तो बढ़ रहा है, लेकिन नदियां जिस तरह से संकुचित होती जा रही हैं, सूख रही हैं, उनको बचाना है। वनों की कटाई को रोकना है, क्योंकि वनों की कटाई से हम अपने सारी लकड़ियों से उसके अपने सुख के साधनों को हम बनवाते हैं, तो इनको भी कम करना होगा। और सबसे बड़ी चीज है प्लास्टिक का। सब हम प्लास्टिक के प्रयोग को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उससे धरती जिस तरह से बंजर हो रही है, चाहे वो अरे पशु खा लेते हैं, गाय भैंसे आप देखिए खा लेते हैं, उनका क्या दुष्परिणाम होता है। और वह ऐसा हम प्लास्टिक यूज करें जिसको हम रिसाइकिल कर पाए, कि कई बार हम उसको प्रयोग में लाएं। और कभी कभी आप समाचार पत्रों में पढ़ेंगे कि बहुत सारे आदिवासी इलाकों में, जिसको हम कहते हैं कि बहुत विकसित क्षेत्र नहीं है, वहां पर उन लोगों ने पुराने ढंग से फिर से पत्तल, दोने जैसी चीजों का प्रयोग करना शुरू किए हैं। क्योंकि आजकल तमाम प्लास्टिक के कटोरियां, प्लेट्स आ रही हैं, और वो सारी हम खा के फेंक देते हैं और ऐसे ही धरती पर पड़ी रहती हैं। वो गलती नहीं है, जब तक उसको जलाइए ना, और जलाएंगे तो उसके धुएं से प्रदूषण फैलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सब पर हमको नियंत्रण करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं जिससे ऑक्सीजन मिले। और क्योंकि यह प्रकृति जो है हमारी सहयोगी है। आप देखिए, जब हमारे स्वास्थ्य खराब होता है तो लोग कहते हैं पहाड़ पर चले जाइए, पर्वत पे, चूंकि प्रकृति वहां पे प्रदूषण कम है। इसलिए इन सारी चीजों को, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण के जो विविध रूप हैं, उन सबको नियंत्रित करके हमें अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती को, अपनी माँ को, अपनी प्रकृति को बचाना होगा। सर, मैं एक कविता बहुत अच्छी है, मुझे लगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हमारी धरा थी कितनी सुंदर पावन, हरे भरे वृक्षों से लदी हुई मन भावन। ये तो है सारी बीती सदी की प्यारी बातें, छा गई प्रकृति पर अब तो स्याह रातें। नदी नाले को तेजी से प्रकृति सुखाने लगी है, कभी सूखा, कभी बाढ़ का, कभी महामारी फैलाने लगी है। प्रकृति भी अपने वजूद का एहसास कराने लगी है, अबोल जीवों का संहार करने लगा है मानव, इंसानियत को कर खात्मा बन गया दानव। सुनामी, भूकंप और कोरोना के रूप में प्रकृति ने भी लिया फिर बदला होकर मौन करने लगी है अब तो। वो भी मानव पर क्रोध कर वृक्षारोपण और प्रकृति का तू सम्मान। प्रकृति होगी सुरक्षित तो तू भी होगा सुरक्षित, खुशहाल। सर, इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और हार्दिक आभार सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत आभार आपका मैडम, जुड़ती रहिएगा, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छा बोलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत। अग्निहोत्री सर। बहुत सही, बहुत ही धन्यवाद प्रोफेसर मीना कश्यप जी, आपने बहुत ही अच्छी बिंदु पर चर्चा की और आपने ग्लोबल वार्मिंग तक की बात कह दी। और देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इतनी होगी कि उसको बचाने के लिए घर में एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार एसी लग रहे हैं, और एसी से फिर नहीं प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण फैला। वो ऐसा विशेष सर्कल हो रहा है, हमें साइकिल पे जाना पड़ेगा। कहाँ कर रहे हैं सर, बढ़ा ही रहे हैं दिन पर दिन। सोचना है कि अवसर आ गया। बहुत बहुत आपका आभार, आप जुड़ी, आपने हमारा हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत आभार। ऐसा नहीं है सर, जब जरूरत होगी तो हम उपलब्ध रहेंगे सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत।
हमें अपनी अगली वक्ता, अभी 2 वक्ता बाकी हैं, एक अमृता जी और एक हमारे बड़े भाई डॉक्टर आलोक शर्मा जी। तो मैं अमृता जी को सर्वप्रथम और वो आपकी दीदी शशि श्रुति जी भी कविता लिए बैठी हैं आखिर तक। जरूर स्वागत है। पहले मैं अमृता जी को, वो अब आप मंच संभालिए ना सर। हाँ, आप थके होंगे आज। चलिए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमृता मिश्रा जी को मुंबई से, उद्धव कॉलेज से ज्वाइन कराता हूँ उनके वचनों के लिए। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। ये स्वागत है डॉक्टर अमृता मिश्रा जी। जी स्वागत, नमस्कार। अनम्यूट कर लिए। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, ठीक। अमृता जी आपका स्वागत है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। सर आवाज नमस्कार, आ रही है स्वागत। आपको? जी आ गई। नमस्कार, स्वागत है। जी जी नमस्ते सर, नमस्ते। क्या आपका कोई प्रेजेंटेशन है क्या? आप शुरू करिए। नहीं, डायरेक्ट बोलिए। हाँ ठीक है, स्वागत। हेलो, यस सर, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, ऑडिबल है। आप शुरू करिए, स्वागत है आपका। Okay sir, okay sir, yeah. So at the outset, thank you very much to the organizers for giving me this opportunity to speak on this topic. So the topic given to me today is on nature, and I will be speaking on some of the aspects of nature and the correlation with Ayurveda. Hello, hello, yes. स्वागत है आपका, शुरू करिए। Yes. So thank you very much. So I will be speaking on nature and some of the aspects of nature which are related to the living beings and primarily on the Ayurvedic aspects. So as it is a known secret that nature is the greatest gift to mankind. So actually nature involves all the beautiful and the useful aspects, as my previous speakers have already emphasized on some of the important aspects of nature and the importance of nature for all the living creatures. So we see that nature surrounds us in different ways, and most of the beautiful ways that we can think of, and most of the useful aspects for not only mankind but the entire living being. So the buzzing of the bees, the rustling of the ocean, as I speak, we can just imagine the beauty that surrounds us and which is depicted in the words also, like the green landscapes, the chirping of the birds. So the words itself give us the feeling of freshness. So we can imagine when we are experiencing this in life, it gives us such a solace to each and every cell and refreshes our mind and body. Nature and life are inseparable. So it is life is nature and nature is life. So we know, and all our learned audience is also very much known to them that, and researchers have very vividly established the association between nature exposure and because of this nature exposure, the profound and the increased amount of the cognitive improvement in the cognitive functions, brain development, blood pressure, rather all the physiological processes in the human beings, and not only human beings, it has a healthy impact on all the living creatures. Actually, nature is the source of life for all the living beings which are present on the earth. So this aspect was very well known to our ancient gurus, as we can say, and those who have written
and those who are the founders of Ayurvedic, it was very much known to them as well. What I can say is it was even more known to them so that they have incorporated the aspects of nature and have very well correlated nature with the human body. It is said in Ayurvedic texts that Pinde tatha Brahmande. As the nature, so is the human body. Whatever is there in the human body is exactly replicated in the living cell also. And while mentioning this, they have mentioned the aspect of Panchamahabhut. So Ayurvedic people are very much aware of the aspect of Panchamahabhut. So it is said that Panchamahabhut, that is Prithvi, Jal, Tej, Vayu, and Akash, comprises the entire, as you can say, the environment or the entire nature. Nothing is beyond this Panchamahabhutas. So this is what Brahmanda is all about. It is all about the Panchamahabhutas. And so is the human body. Each and every cell of the human body is composed of Panchamahabhutas. Now, this Panchamahabhut, all Panchamahabhutas can be very well incorporated in a single living cell. Now, in the living cell, how? So, every cell, whatever is the ghanata or the density, the dense part of the cell, you can say that it is comprised of Prithvi Mahabhut. Whatever the liquidation is there in the living cell, or broadly we can say that in the living body, whatever the liquid component is there, that is nothing but the Jal Mahabhut. Whatever the spaces are there in the human body, or you can say that the intracellular space is nothing but Vayu, Akash. And then what we see is there is motion in every cell. So be it motion of the electrons in their orbits, or you can say this is a small part. And if in a broader perspective, we can say that each and every motion or the activity that happens in each and every human or any living structure is because of Vayu Mahabhut. And Teja is nothing but the metabolism. Metabolism revolving around the digestion or any other, you can say, mechanism that involves metabolism or Agni or digestion is nothing but energy, and that is Tej Mahabhut. So this we can see in nature very well that we have Akash. Akash is nothing but the celestial space. So that can be very well correlated with the cellular spaces in the body. And then we have Vayu or the air or the atmospheric air which is present in the environment. Then we see the greatest source of energy, which is sun, which is there for Mother Nature, which is the source of energy for us. And then we see that there is this Akash, Tej, Vayu, and the Prithvi. Prithvi, that is the soil which is present. So this is very well can be correlated, and our good old days, our acharyas, which were our greatest gurus, very well knew, and they could very well replicate it, and hence they have mentioned these concepts in the Ayurvedic literature. So what we need to do is always keep a pace with nature and not leave it. We see that nowadays we see that many of the diseases are coming, and most of the diseases, the scientists say that they don't know any particular cause of the disease. So when we don't know any cause of the disease, we label it as idiopathic, or we attribute it to be having or to be occurring because of disturbed lifestyle. So what is lifestyle? Defective lifestyle is the lifestyle which is away from the natural lifestyle. So if we are following the natural lifestyle, which is very well mentioned in Ayurveda in the form of Dinacharya and Rutucharya, all the aspects of Dinacharya and Rutucharya bring us close to the natural lifestyle. So being healthy is being natural. This is what I can say. And this is what Ayurveda has to say, that being healthy is being natural. From the Panchamahabhutic point of view, any disturbance we see in nature, that be it the global warming or be it the environmental pollutants or different things that are happening, be it loads of constructions, deforestation. So these are the natural threats. And because of that, we see many natural calamities occurring in the form of tsunamis or in the form of several unknown diseases. Recently, COVID is the biggest example. Similarly, in the human body, any disturbance in the proportion of Panchamahabhut leads to diseases. So it is the stabilization or the normalcy of Mahabhutas inside and outside
which leads to maintenance of harmony inside and outside. So another thing that what I would like to emphasize, depending on the diseases, there are several researches which have been conducted in different parts of the globe. And most of the researchers have the conclusion saying that we are supposed to adopt something which is natural. Like for instance, several researchers have shown that earlier we were into like cooking food in some earthen pots. Then there was use of iron and several natural elements which was used for cooking. Nowadays, in order to make the human life more feasible and more easy, as Madam has also said in her speech, in her lecture. So earlier it was a threshold of making life easy, and because of that, we were into inventing several gadgets. Recent one, all I can say is the induction heater, or I can say that we are using this microwave ovens. And some studies have shown that the food cooked in the microwave can be one of the sources or can be considered to be carcinogen. So again, we are going back to nature. Now we are getting so many earthen pots with high rates, and people are rushing to buy it like anything. So it is a good change that the people are understanding the importance of nature, not only nature, but the facilities that nature has gifted us with in the form of soil, in the form of fresh air, in the form of what we can say, fresh sunlight, so many things that Mother Nature has gifted us. And that is what our body is suited for. Our body is not suited for the artificial means. We are created in such a way. We are a part of nature. So our body is most suited to whatever we can get from nature. Like, for example, in Rutuchari, Acharyas have mentioned a whole lot of detailed concepts which are to be followed in the aspect of following Rutucharya. So nowadays we see that fruits coming in all the seasons. So if we consume those fruits which are not suitable or not available in that particular season, it is not suitable for the body, and then we end up in diseases which again land up in being lifestyle diseases. So whatever is grown in that particular season, whatever is grown in that particular part of where we are living, that is what's suitable for us. So that is what we should adopt. The other thing which I would like to emphasize is the medicinal plants. Now, COVID is the best example. I can see that COVID had indeed created a havoc for the mankind, but it has, and undoubtedly, I would say that everyone would agree with me when I say that it has brought us close to nature physically, mentally, and in every way. Even socially, we have come close because of this COVID. So, in a great way, COVID has contributed to bringing us close to nature. So, there is a small quote which I would like to say. A walk in nature walks the soul back home. So there is a recent research which says that the person who spends most of his life, and most of the time of his life surrounded by nature, maybe in the woods, maybe near the rivers, maybe in the form of some mountain places. So the longevity has increased in such people. So in that way, they have said that the research is, and this is not the only research. There are several studies which are available on net, which has emphasized the importance of nature for increased longevity and having a disease-free lifestyle. So food also, as I have already said, that unripe, having some foods which are not seasonal, unripe fruit, use of pesticides in the quest of growing fruits and vegetables in huge quantity have posed great threats for us. So what is the solution? Solution is again the same thing, having naturally ripe fruits and vegetables which are available in the naturalist form which is available. Now, Ayurveda has also mentioned some of the concepts in the form of Swarna Prashan and several other concepts which are emphasized that when the person in the form of sanskaras. Now, if these sanskaras are followed, that the sanskaras which are there incorporates the use of all the natural things possible. So Swarna Prashan, Swarna is a metal which we know has several immunomodulator properties. So this Swarna Prashan is given, if given to the person or given to the child at the youngest possible age, increases his immunity and can be beneficial for him to combat several diseases. Now, another risk which I would like to focus upon is the milk production.
it is very well known that milk is one of the most natural products which is available for us, and it has innumerable health benefits. So it is true, but the threat which is posed in this production, milk production, is the use of oxytocin and several things which are rather dangerous for the body and for the cells. And they have themselves created so many complications for us and the diseases like allergic reactions, then several gastritis and other GI related problems, even some respiratory tract related problems are there. So natural things are there, but natural things should be adapted in their original form and not in the modified form. There is so much to say about this, but I think there are other speakers also waiting, and so I would not like to take much of your time. Maybe some other day we can have another detailed discussion about this. So I would like to end my speech with something in Hindi, which I think goes with this lecture topic. फूलों से सीखिए सबके जीवन में रंग भरना, फूलों से सीखिए सबके जीवन में रंग भरना, पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों को छूना, कलियों से सीखिए मुस्कुरा कर जीना, और कांटों से सीखिए कष्टों से उबरना. So the theme of my topic, and I end by saying that the goal of life is living in agreement with nature. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच अमृता जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं. जुड़ते रहिएगा, बहुत जुड़ते रहिए. Thank you. प्रोफेसर अग्निहोत्री सर, नाउ प्लीज टेक. सुतपा वर्धन जी हमारे साथ जुड़ी है आपके कमेंट के बाद, क्योंकि वो 3 बार जुड़ी है तो मैं नहीं जानता. मैडम अमृता जी ने बहुत अच्छे से बताया और पूरा जस्टिस किया ये समझाने का कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक है. हम जो हमारे शरीर की बाहर प्रकृति है, वैसे ही हमारी उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है. इसलिए हम लोग आपस में एग्रीमेंट रखना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए. बहुत दूर तक ले गई बहुत सारे विचारों के साथ में, बट बहुत बहुत स्वागत है आपका. बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने जितने भी पोल्यूशन के संबंधी चीजें थी, पोल्यूटेंट्स के बारे में थी, सारा चर्चा किया और आप जुड़ी, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं इसमें जैसा कि दर्शन बताया प्रोफेसर जी ने कि सुतपा जी आए हैं, मैं जुड़ी हुई है हमारे इसमें. आलोक शर्मा जी अपने स्पीकर है पहले. हाँ, अच्छा, स्पीकर के बाद ओहो, हमारे सबके बड़े मित्र और इस मंच की एक सशक्त विभूति, और जो कहें वो कम है अलंकार के. जहाँ तक सवाल है, मेरठ से पधारते हैं, रोटेरियन हैं और विषय इनकी चेरी रहती है हमेशा. इनका विषय से जो आधिपत्य है वो इतना ज्यादा है कि हमें इनवाइट करने में ही देरी हो सकती है, इनकी प्रेजेंटेशन में देरी नहीं होगी. तो हमारे मित्र रोटेरियन डॉक्टर आलोक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप मेरठ से पधारते हैं और आनंदम हॉस्पिटल में आयुष विंग में डायरेक्टर के हैसियत से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. स्वागत है, नमस्कार. नमस्कार. आज क्या कोइंसिडेंस था, जब मैंने पवन जी का व्हाट्सएप खोला और मेरा प्रोग्राम में बोलने वालों में एक नाम था, तभी मेरी कुर्सी हिलने लगी. मेरी कुर्सी बड़ी भारी हैगी. तो मैंने कि आज तो पता नहीं कौन सा दिन हैगा, तो देखा वो वर्ल्ड नेचर डे था. एक कोइंसिडेंस था. एनसीआर में भूकंप भी आया था. हाँ, तो मेरी कुर्सी इतनी भारी थी वो हिलने लगी. मैं कहूँ आज ये क्या हो रहा हैगा, तो देखा कि भाई साहब पवन जी ने मैसेज भेज रखा, हिल जाओ और शाम को मिल जाना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा. देखिए, प्रकृति आज वर्ल्ड नेचर डे है. नेचुरली को उद्देश्य तो होगा जिसने बनाया होगा वर्ल्ड नेचर डे बनाने के लिए जो हैगा. तो आज जो 3 अक्टूबर 2010 को ये फिक्स करा गया कि इस दिन एक पब्लिक में अवेयरनेस करना है कि कैसे हम नेचर को प्रिजर्व कर सकें, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे. एक टारगेट आया, क्योंकि एक टाइम था हम बहुत नेचुरल थे, जंगलों में रहते थे, बहुत कम शहर थे, अर्बनाइजेशन बहुत पुअर हुआ था, सब अपने रूरल्स में रहते थे, रूरल के जंगलों में भी रहते थे. पर समय के परिवर्तन के साथ साथ, वृद्धि के साथ साथ और सो कॉल्ड विकास के साथ साथ, सो कॉल्ड विकास नॉट ए विकास के साथ साथ, हमने जंगलों का दोहन शुरू कर दिया और हम
डिफरेंट प्रॉब्लम से सफर करते गए, पर आज हमें ये दिन आना पड़ा कि विश्व को वर्ल्ड नेचर डे सेलिब्रेट करने की मजबूरी आ गई कि हम उसमें करना क्या है, क्यों करना है। जहाँ तक हमारी बात है भारतीयता की, आयुर्वेद की, हम लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं और भारतीय भी हैं। बचपन से देखा है हमने केले की पूजा करते हुए, पीपल में भगवान कृष्ण का वास, बरगद तो वट सावित्री पे पूजन करना ही करना हैगा, शमी की वृक्ष की शनिवार को पूजा करनी हैगी, कभी हमें नीम की पूजा करनी है, आंवला एकादशी पे हमें आंवला के वृक्ष की पूजन करना हैगा। हमें तो बचपन से संस्कार यही मिले हैं कि वृक्षों का पूजन करना है, हमने वृक्षों को देवता के रूप में माना है, वृक्षों को सजीव माना है। आयुर्वेद की परिभाषा भी है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे और सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, सभी द्रव्य पांच भौतिक हैं और उस पांच भौतिक में वो प्लांट्स भी हैं, वो जीव भी हैं और हम भी हैं। हम सब एक ही हैं, एक ही उससे जुड़े हुए हैं। हमने अननेसेसरी उनका दोहन करा जिन पे एक जवान नहीं है, जिन पे एक आवाज नहीं है। तो उनको आवाज देने के लिए आज वर्ल्ड नेचर डे की शुरुआत करी गई कि उनके लिए भी हम कुछ सोच सकें, और सोचे उनके लिए नहीं, सोचेंगे अपने लिए, क्योंकि प्रकृति है तो अतीत है और जीवन की सुरक्षित करने के लिए प्रकृति को सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। जंगल मतलब प्रकृति से मेरा मतलब हैगा। और नैतिक रूप से बोलते हुए हमें अपने पर्यावरण के लिए चिंतित होना चाहिएगा। हमें लोगों को यह सिखाने का जरूरत है कि पर्यावरण का सीधा असर हमारी प्रगति पे, हमारे जीवन पे, हमारे भविष्य पर है। पृथ्वी हर व्यक्ति को जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, पर हमारी मतलब लालच ने हमें उसका दोहन करना सिखा दिया, हमने उसका दोहन शुरू कर दिया। कहीं खदानें कूद रही हैंगी, कहीं मेट्रो बनाने के लिए सब जमीन में अंदर घुस गए, कहीं हमने एक मतलब आज हर दिल्ली के अंदर देखिए, हर मेट्रो सिटी में 4 लेयर बन गई, सबवे अलग है, सड़क अलग है और उसके ऊपर फ्लाईओवर अलग है, उसके ऊपर रैपिड रेल चल रहा है। तो आज 4 फ्लोर पे हम चल रहे हैं, कहाँ 1 फ्लोर पे चलने वाले थे। तो जीवन शैली में प्रभाव तो हमारे पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके लिए कितने वृक्षों कटान हो रहा है। दिल्ली मेट्रो का निर्माण हुआ, वहां एक निश्चित तक जितने पेड़ कटेंगे उससे 10 गुने पेड़ दिल्ली मेट्रो डिफरेंट जगह लगाएगी, पर वो चीज नियम हर जगह लागू नहीं होता, धुआं शुरू हो गया। और हम ही ने नहीं, हमारे शास्त्रों ने नहीं, बाहर के अंग्रेजों ने भी, जैसे लियो टॉलस्टॉय एक बड़े अच्छे हमारे साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने कहा है खुशी की एक पहली शर्त है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जुड़ाव ना टूटे। पर हमने वो जुड़ाव तोड़ दिया हैगा, जिसके लिए आज हम सफर कर रहे हैं। एक छोटी सी वो है, बहुत मजबूत होती है जड़ें उनकी जो प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं। वो अभावों में नहीं जीते जो इससे खास लगाव रखते हैं। तो एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जो एक बार उड़ीसा मुझे बिल्कुल ही आदिवासी इलाके में जाना पड़ा, बिल्कुल आदिवासी इलाका, नॉन डेवलपमेंट आप कुछ भी कह लीजिएगा, मतलब बिल्कुल ठेठ ड्राइवर, एसटी नहीं कहूंगा मैं, ठेठ मतलब जंगल वाले पार्ट में जाना पड़ा। तो वहाँ खदानों का जैसे बड़े बड़े बिल्डर, मतलब जो भी पॉलिटिकल लिंक से खदानें शुरू हो जाती हैं, तो लोकल आदिवासियों ने वो आंदोलन शुरू करा कि वहां फिर फायरिंग हुई, 2 आदिवासी मरे, उनको नक्सलाइट लेबल कर दिया गया। तो वो जंगल में जो रहते हैं उनको पता है कि जंगल की क्या इंपॉर्टेंस है। हम तो वो जंगली नहीं है, जंगली तो हम होकर जंगल का कटान कर रहे हैं जो है। तो अगर हम उतने जागरूक नहीं होंगे, उन जंगलों की रक्षा नहीं करेंगे, बड़े बड़े फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे, तो विश्व में CO2 लेवल वो होगा, इतनी वार्मिंग होगी, सारे जो ग्लेशियर से पिघल जाएंगे। आज अंटार्कटिका का टेम्परेचर जो है ना हाई हो गया, जिसकी वजह से बर्फ पिघल रहा है, और ये बर्फ अगर पिघलेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का पानी बढ़ेगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा तो पृथ्वी को डुबोता चला जाएगा। और ये प्रेडिक्शन आ रही है कि बॉम्बे वगैरह जो सी कोस्ट सारे शहर हैं, हम डिफरेंट खतरे में आ रहे हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग पे हम अभी से फोकस नहीं करेंगे। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, अभी छोटा सा एक कैंपेन शुरू हुआ कि प्लास्टिक यूज ना करें, रिसाइकिल प्लास्टिक यूज करेंगे, थैलियां नहीं यूज करेंगे, घर से थैला लेके चलें। बड़ा अच्छा है, कुछ कोरोना पीरियड में एक मूवमेंट शुरू हुआ, कुछ दिन के लिए ढोल बजा, पॉलिटिकल लीडर्स भी आए, पेपर में ऐड भी आए, एक टीम भी बनी, पर वो बनी रह गई। छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, एक दुकान पे मैं जाता था, तो मैं वैसे ही जो बच्चे थैला लेके नहीं आते थे, मैंने कहा बेटा थैला लेके क्यों नहीं आए? बोले अंकल ऐसा है वैसा, डिफरेंट लॉजिक थी। तो मैंने कहा बेटा किस स्कूल में पढ़ते हो? ला आपका फोटो खींचते हैं। तो बड़ा आराम से फोटो खींचने खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं आपका स्कूल भेजूंगा, ये बच्चा थैला लेकर नहीं आता घर से जो है। तो छोटा सा एक कैंपेन भी हम शुरू करें, छोटा सा एक मोटिवेशन भी हम करें, पर उसके लिए हमें मॉडल खुद बनना पड़ेगा, केवल उपदेश देने से हमें काम नहीं चलेगा जो है। तो वो हमें अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम जीना सीखेंगे।
किसी ने क्या कवि ने कहा है, किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का, जो धूप छांव से भी रिश्ता बनाए रखता है। हमें जीवन सीखना है उनसे, जो है उदाहरण है, हमारे रोल मॉडल्स हैं, वो केवल पेड़ नहीं है। हम पेड़ लेके उनको नेग्लेक्ट ना करें, इनमें तो हमारे देवताओं का वास हैगा। बचपन से आप देखिएगा, एक पास से 40-45 ईयर्स पहले पत्तलों का कितना यूज था। कुम्हार के मिट्टी के बर्तनों में शकोरे और कुल्हड़ एंड तस्तरी का यूज होता था, जो है उन्हीं में खाना पकाया जाता था, जो है आज भी उड़ीसा के मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया जाता है। उसकी उपयोगिता अलग ही है, जो है तो हमने वो सब भूल गए हम, क्योंकि बहुत सस्ती चीज पे आ गए, जो है ठीक है। आज मजबूरी हो गई है कि हमने अपनी सोसाइटी बनाने के लिए, हमने अच्छे अच्छे मकान बनाने के लिए खेतों को खरीद लिया, पेड़ कट गए और हम बस गए। अब नेचुरली उनका सांप जंतु रहते थे, उनका घर भी हमने कब्जा लिया, जो है तो वो हम पे अटैक तो करेंगे ही करेंगे। और एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम होता जा रहा है, मोती जी को भी सोना है, हमारे पवन जी बहुत थक चुके हैं, वो कितना काम करते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक प्रैक्टिकली, कि सर्वे द्रव्यम पांच भौतिक, हम तो बोल तो दिए पंच महाभूत, पर क्या हम पंच महाभूतों के लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं? कभी भी अपने अंदर पंच महाभूतों को हम समझते कि पंच महाभूत क्या है? मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा जो प्रैक्टिकली मैं यूज करता हूं। अगर आप स्नान करते समय मंगलम विशतु में आकाशः, मंगलम विशतु में वायु, मंगलु विशतु में आपा, मंगल विशतु में अग्नि, मंगलम विशतु में पृथ्वी, ये 5 मग अपने ऊपर इन पंच महाभूतों से आशीर्वाद लेके अपने ऊपर डालें, तो आपके पंच महाभूत जागृत हो जाएंगे। पंच महाभूत आपको आशीर्वाद देंगे, अगले पंच महाभूतों से जोड़ेंगे। हम तो पंच महाभूतों का नाम बोलते हैं उनके लिए, कभी उनके लिए ना उनसे आशीर्वाद मांगते, ना उनके लिए थैंकफुल होते हैं। और जब हम थैंकफुल नहीं है तो उन पंच महाभूतों की रक्षा किस प्रकार से करेंगे? उपदेश तो बड़े बड़े मोटे दे लेंगे, जो है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप एक पॉइंट करके दिखाइएगा, तब कुछ पृथ्वी बदलेगी, नहीं तो केवल उपदेश से, भाषणों से कुछ नहीं बदलने वाला, जो है। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। उन दरियों का हमने क्या हाल कराएगा? आज हम देख रहे हैं यमुना का हमारा क्या हाल हो चुका है। यमुना छोड़िए, गंगा जिसको हम माँ कहते हैं भाई, उस माँ का हमने ऋषिकेश के बाद क्या हाल कर दिया है कलकत्ता जो है कि आज उसका पानी नहीं पी सकते, आज हम उसका आचमन नहीं कर सकते। यमुना को हमने किस रूप में माना, किस रूप में पूजन करा, हमने क्या कर दिया है। नर्मदा का जाके हाल देखिए, जितनी नदियां हमारी जो पूजनीय थी, हमने पृथ्वी को मां माना, हमने पृथ्वी पे क्या हाल कर दिया है। कितने केमिकल्स, कितनी गंदगी उसमें बढ़ाए चले जा रहे हैं, कभी रक्षा करने का विचार ही नहीं करा, जो है। अगर हम इन सबका चिंतन नहीं करेंगे तो हम कैसे क्या कर पाएंगे? अंत में मैं यही कहूंगा, बहुत है नादानियां, अब समझने का प्रयास करो। जो दिया है प्रकृति ने हमें, उसको धन्यवाद करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अग्निहोत्री जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। संक्षिप्त में टू द पॉइंट बात, सीधा अटैक, सीधा अवेयरनेस, सीधी जागरूकता फैलाने की बात। और इसलिए हमें उनके प्रति जो एक आदर का भाव था वो बना रहे, हम उनके प्रति गलती नहीं करेंगे। जब हम कहते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले कृष्ण पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व, जब हम पाद स्पर्शम क्षमस्व कहते हैं तो जिससे हम क्षमा मांगते हैं उसके प्रति हम कैसे गलत काम कर सकते हैं, कैसे उसके प्रति हम जो है अनाचारी, अत्याचारी और उसके ऊपर प्रदूषण फैलाएंगे। जैसे आपने कहा कि हम पंच महाभूतों का स्मरण करते हुए 5 लोटे जल डालें, तो हम ये अपना जुड़ाव उन पर दिखाएंगे कि हम पंचमहाभूतों से जुड़े हैं। पंचमहाभूत हमारे शरीर के प्राण के रक्षक हैं और उन्हीं को हम खाते हैं, उन्हीं की उत्पत्ति से हमारी उत्पत्ति, उन्हीं के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। ये भावना यदि आ जाए तो बहुत ज्यादा इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगानी है, अपने मन की ही प्रोजेक्ट लगाना है, अपने मन का ही धन लगाना है। अगर हम इतना भी अगर विश्व को वर्ल्ड हेल्थ उसपे नेचर डे पे दे सकते हैं तो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। हमारे तो रोज इसको सेलिब्रेट करते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा। और बुद्धिजीवियों का तो ये दायित्व बनता ही है, खुद भी अपने को सुधारें, अपने ऊपर अमल करें और वही भाव बाहर रखें। जैसे कि आपने बच्चों के बारे में बताया, सब कोई तरीका है। बहुत स्वच्छ भारत अभियान चला, बहुत कुछ हुआ। हमारे साथ में
आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में। हम जानते हैं यूनानी और आयुर्वेद बहुत दूर दूर नहीं, बहुत करीब करीब है। हमारे सोफी साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद है। प्रोफेसर रामदास जी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हमारा समुद्र के पास से हैं, केरल से हैं। तो हमारे पहाड़ों से लेके समुद्र तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, हर जगह प्रकृति है, हर जगह प्रकृति पर प्रदूषण हो रहा है, हर जगह प्रकृति से अत्याचार हो रहा है, और वहीं वहीं पर हमें प्रकृति के बचाव के लिए भी जागरूकता भी आगे रखनी है। आज हमारे आज के सभी प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी, हृदय से उनका बहुत बहुत आभार है। और अब इस क्रम में पहले हम जी सोफी साहब से निवेदन करेंगे कि वो अपने विचार रखें, और शशि श्रुति को पहले से हम आमंत्रित कर दे रहे हैं कि उनकी प्रस्तुति बिल्कुल वो करीब एकदम तैयार रखें, जिससे कि समय की बचत हो सके। तो आदरणीय सोफी सर, आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और आप बतलाइए कि चूंकि हमारी औषधियां, आपकी औषधियां आयुर्वेद यूनानी करीब करीब हैं, साथ साथ हैं, तो कैसे हम बचें कि हमारी प्रकृति का बचाव होता है और हमारे प्राणों की सुरक्षा भी हो सके, प्रकृति का श्रृंगार जो है वो समुचित रूप से भली प्रकार से बना रहे। स्वागत है सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर अभी जो बड़े अच्छे जो विचार आए हैं और बड़ा आनंद मिला हमें इससे कि एनवायरनमेंट डे हम मना रहे हैं और उसको हम अपने ट्रेडिशनल पैथीज के हिसाब से उसको देख रहे हैं, चाहे वो पंच महाभूता हो या प्रकृति हो। लेकिन इसमें जो हम यूनानी के हिसाब से कहते हैं कि जब हम पंच महाभूता या अरकान बोलते हैं, हमारे यहाँ 4 हैं, आपके यहाँ 5 हैं, तो लेकिन ये बहुत ही एलिमेंट्री लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब तक ये पंच महाभूता या 4 अरकान मिलते हैं और उसके बाद वो ऑर्गन लेवल तक पहुंचाते हैं इंसान को और उसमें लाइफ आती है, तो उस वक्त वो लेवल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। वहाँ सिर्फ न सिर्फ पंच महाभूता का काम रहता है, बल्कि वहाँ प्रकृति और दोषा या हम ये कहेंगे कि अखलात का काम भी आगे बढ़ता है, तब जाकर के उस लाइफ को सस्टेन रहना पड़ता है। लेकिन वो लाइफ तब तक सस्टेन नहीं होती है जब तक वो एनवायरमेंट से या अपने माहौल, इर्द गिर्द के माहौल से वो चीजें ना लें जो लाइफ सपोर्टिंग हो। और अगर वो लाइफ सपोर्टिंग नहीं होती है तो ला महला जो डार्विन ने कहा है हमें कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसीलिए हमें जरूरत होती है कि जो हमारे बाहर इन्वायरमेंट है और जो हमारे अंदर इन्वायरमेंटल नीड्स है, वो जब तक बैलेंस में ना आए तब तक जो है हमेशा ये इम्बैलेंस रहेगा। अभी जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम तो टेक्नोलॉजी को निगेट नहीं कर सकते और हमारे कंफर्ट के लिए ही होती है, लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे सारा फूड चेन जो है वो खराब हो चुका है, वो टूट चुका है, हमारा फूड वेब जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, और फिर हम लोग जो है दूसरों के लिए आफत बने हुए हैं, दूसरे जीव के लिए हम लोग गलत साबित हो रहे हैं। हम लोग उनको मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, भले ही वो मच्छर हो या मक्खी हो, हम उनको मार देना चाहते हैं, हम उनको अपने एनवायरनमेंट से भगाना चाहते हैं। चाइना ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया और वहां कहत हुआ और वहां वबा आ गई। चाइना ने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने हर चीज को खाना शुरू किया तो हमारे यहाँ कोविड लेके आ गई। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि हम लोग इन्वायरमेंट के साथ अपना बैलेंस नहीं रख पाते। ये बेसिकली 2 फिलॉसफीज हैं जो दुनिया में चल रही है। एक फिलॉसफी ये है कि वी आर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, हम ही दुनिया पर रूल करने के लिए भेजे गए हैं। हालांकि इस फिलॉसफी के तहत हम हर एक चीज को जिस तरह चाहे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। हालांकि ये बहुत ही पॉजिटिव फिलॉसफी है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। दूसरी एक फिलॉसफी ये है कि हम इस नेचर में सबके साथ मिल करके एक दुनिया बना लें, जो इस फिलॉसफी से थोड़ा डिफरेंट है। और वो रूट्स हमारे अपने ये इंडियन कल्चर में भी है कि सबके साथ जियो और जीने दो का जो फिलॉसफी है वो बहुत ही ज्यादा उम्दा है, और जिसकी वजह से हम दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, अपना भी ख्याल रखते हैं। तो अगर इन दोनों फिलॉसफीज को हम फर्क करेंगे और ये सोचेंगे कि लिव एंड लेट लिव फिलॉसफी पर कायम रहेंगे, तो उससे ये फायदा होगा कि हम एनवायरनमेंट में बैलेंस भी पैदा कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए चीजों को ढूंढ सकते हैं इससे, और ये भी ख्याल रखेंगे कि दूसरों को भी नुकसान ना हो रहा हो।
तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जब तक अगर हम ये चाहें कि हमें इन्वायरमेंट क्लीन रखना है, हमें इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पहली फिलॉसफी है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ रिस रहे हैं, खत्म, मतलब ये पूरी पूरी जमीनें धंस रही है। उसके बाद कहीं पर तालाबारी हो रही है तो कहीं पर सैलाब आ रहे हैं, कहीं पर समंदर उभर रहे हैं। ये सारी जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, इसकी खता हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमें भगवान सजा दे रहा है, बल्कि ये इंसान जो है अपने आप को सजा दे रहा है। वो वही उसी फिलॉसफी से आ रहा है कि हम जो है यहाँ रूल करने आए हैं, हम जो है हर चीज पर कब्जा जमाने के लिए आए हैं। उस फिलॉसफी के साथ अगर हम दुनिया में रहेंगे, जहाँ महला हम इन्वायरमेंट को खराब करेंगे, इन्वायरमेंट को खत्म करेंगे। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर हम ये सोचेंगे कि हम भी एक जीव है बहुत सारी जीव में, ये एक वेब ऑफ लाइफ है, इसमें हम किसी कहीं ना कहीं इस वेब में फिट हुए हैं, और ये सारे जो दूसरे वेब्स हैं ये हमारे ही फायदे के लिए। अगर इस तरह से सोच करके फिर वो सारे हम स्टेप्स लेंगे जिससे हम अपने वेब इन्वायरमेंटल वेब को भी कायम रख सकते हैं और अपने आप को भी, तो हो सकता है फ्यूचर में ये अर्थ जो है स्वर्ग बन जाए, जिसको हमने इस वक्त नर्क बना रखा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही उम्दा और बहुत ही टू द पॉइंट बातें बतलाई कि हम किस तरीके से पृथ्वी के साथ में, प्रकृति के साथ में नुकसानदायक काम कर रहे हैं और खुद ही इसके लिए हमको अपना उसका खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। अभी भी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आगे भी अगर हम इस पर थोड़ा सा भी सजग होकर कार्य करेंगे तो हम प्रकृति के साथ में कुछ और दिनों तक अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना कर सकते हैं। आपने आज अपने विचार दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ में दो अलग अलग समुद्र प्रदेश से लोग जुड़े हुए थे। मनीषी हमारे प्रोफेसर रामदास जी और प्रोफेसर जो कि हमारे हिंद महासागर की तरफ से आते हैं, और ऑन अदर हैंड प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी जो कि अरब सागर की तरफ से आते हैं। वो दोनों लोग अपनी बातें रखेंगे। उससे पहले चूंकि बुद्धिजीवियों ने माहौल को बहुत ही ज्यादा सारगर्भित और प्रेरणादायक बना दिया है, जागरूकता बना दिया है। इसको थोड़ा सा लाइट करते हुए अपनी आदरणीय शशि श्रोत्री जी अगर उपलब्ध हैं और उनकी प्रस्तुति तैयार है तो उनको स्पीच हम ले लेते हैं। फिर हम सुतपा जी को आमंत्रित करेंगे और प्रोफेसर रामदास जी को किसी कम में रखेंगे। ये तो नाम मेरे पास तैयार हैं, और उनके अलावा भी जिनको अपने विचार देना है, जिसमें विपिन पांडे जी हैं और लोग हैं, हम फौरन उनको आमंत्रित करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कृपया बने रहिए, हम लोग साथ में जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मंच को प्रणाम करती हूँ जिसने इतना सुंदर विषय रखा है, मदर नेचर। तो मदर नेचर में सबसे पहले मैं वृक्ष जो कट रहे हैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगी कि वृक्ष कट रहे हैं, लेकिन जो वृक्ष को आगे पैदा करते हैं, पशु पक्षी भी खत्म होते चले जा रहे हैं। जो चिड़िया थी वो अपने मुंह में बीज ले लेके जगह जगह पे डालती थी, पानी के बहाव से भी बीज आगे बढ़ जाते थे। तो एक यहाँ का पेड़ जाने कहाँ पे निकलता था यार जाके, उससे भी काफी आदमी नहीं, आदमी ही सारी गलतियां कर रहा है, पशु पक्षियों को भी खत्म कर रहा है और जल को भी दूषित कर रहा है, खत्म कर रहा है। उसी के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता, थोड़ी सी है, 3-4 मिनट की। वृक्ष कितने अनमोल हैं, ध्यान दीजिएगा, वृक्ष कितने अनमोल हैं शायद ये तुमको पता नहीं। वृक्ष कितने अनमोल हैं शायद ये तुमको पता नहीं। पर्यावरण को रखे सुरक्षित शायद ये तुमको पता नहीं। पर्यावरण को रखे सुरक्षित शायद ये तुमको पता नहीं। जीवन के लिए वृक्ष कितना संघर्ष करते हैं। वो छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, बीच में ही सूख भी जाते हैं। जीवन के लिए वृक्ष कितना संघर्ष करते हैं, हम जरा से लाभ के लिए इन पर आरी चलवाते हैं। जीवन के लिए वृक्ष कितना संघर्ष करते हैं, हम जरा से लाभ के लिए इन पर आरी चलवाते हैं। वृक्ष अगर नहीं होंगे तुम सोचो बारिश भी ना हो सकेगी। वृक्ष अगर नहीं होंगे
तो तुम सोचो बारिश भी ना हो सकेगी, इस सारे संसार के लोगों की रक्षा कैसे हो पाएगी। वृक्ष कितने अनमोल हैं, शायद ये तुमको पता नहीं। वृक्ष सदा ही सिखलाते, वृक्ष सदा ही सिखलाते, सर्वस्व लुटाओ एक दूजे पर। वृक्ष सदा ही सिखलाते, सर्वस्व लुटाओ एक दूजे पर। जीवन के सुख दुख भी बांटो, जीवन के सुख दुख भी काटो, वृक्ष की ठंडी छांव में। वृक्ष की ठंडी छांव पर पीपल पूजो, पीपल पूजो, नीम भी पूजो, ना चलाओ आरी इन पर। पीपल पूजो, नीम भी पूजो, ना चलाओ आरी इन पर। वृक्षों पर पक्षी ही रहते, बलिहारी जाओ इन वृक्षों पर। वृक्षों पर पक्षी भी रहते, बलिहारी जाओ इन वृक्षों पर। वृक्ष कितने अनमोल हैं, शायद ये तुमको पता नहीं। वृक्ष नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे, हरियाली के लिए कहाँ भटकोगे तुम। वृक्ष नहीं होंगे, हरियाली के लिए कहाँ भटकोगे तुम सब। वृक्ष लगाओ, स्वर्ग बनाओ इस धरती को तुम सब। वृक्ष लगाओ, स्वर्ग बनाओ इस धरती को तुम सब। आओ आज शपथ लेते हैं, आओ आज शपथ लेते हैं, वृक्ष नहीं कटने देंगे हम अब। आओ आज शपथ लेते हैं, वृक्ष नहीं कटने देंगे हम अब। धरती माँ को हरा भरा करके ही अब मानेंगे हम सब। धरती माँ को हरा भरा ही करके हम मानेंगे अब सब। वृक्ष कितने अनमोल हैं, शायद ये तुमको पता नहीं। वृक्ष कट गए, वृक्ष कट गए तब हम पक्षी के कलरव भी ना सुन पाएंगे। अगर वृक्ष कट गए तो हम पक्षी के कलरव भी ना सुन पाएंगे। बाग बगीचों में सुंदर फल फूल नहीं चुन पाएंगे। बाग बगीचों के सुंदर फल फूल नहीं चुन पाएंगे। पक्षी ही तो करते हैं सहयोग, पक्षी ही तो करते सहयोग वृक्षों को उगाने में। पक्षी भी करते सहयोग वृक्षों को उगाने में। हम लोगों का उत्साह बढ़ाते एकाकीपन दूर करने में। हम लोगों का उत्साह बढ़ाते एकाकीपन दूर करने में। पर्यावरण को सुरक्षित रखे ये तुमको पता नहीं। वृक्षों के कटने के कारण, वृक्षों के कटने के कारण पर्वत भी खोखले हो रहे। वृक्षों के कटने के कारण पर्वत भी खोखले हो रहे हैं। साधु संतों की भूमि, साधु संतों की भूमि को आंसुओं से हम भिगो रहे हैं। साधु संतों की भूमि को हम आंसुओं से भिगो रहे हैं। जड़ी बूटियां खत्म हो रही, जड़ी बूटियां खत्म हो रही, संजीवनी कहाँ से पाओगे। जड़ी बूटियां खत्म हो रही, संजीवनी कहाँ से पाओगे। वृक्ष नहीं होंगे तब हम हा करके रह जाओगे। वृक्ष नहीं होंगे तो सब हा करके रह जाओगे। वृक्ष कितने अनमोल हैं, शायद ये तुमको पता नहीं। पर्यावरण को रखे सुरक्षित, शायद ये तुमको पता नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार। आपने बहुत ही मानविक और बहुत ही दायित्वपूर्ण दायित्व निभाने के लिए आगाह करने वाली अपनी प्रस्तुति दी और उसमें सभी क्षेत्रों को आपने कवर किया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और अभी भी कहाँ पर सुधार किया सकता है। और मैं वो तो है, बिल्कुल सुधार किया जा सकता है, लेकिन सुधरते का लालच तृष्णा लोगों के अंदर इतना लालच भरा हुआ है। मकान जमीन पेड़ काट के मकान बना रहे हैं, वो खाली पड़े हैं, कोई रह नहीं रहा है उन मकानों में, खाली पड़े हैं, बना के डाल लिए। Thank you so much. With these words, I just thank you, and I would like to invite Professor Ramdas PV sir from Kollam with his views that how he consider the maintenance of Prakriti and also to which amount the Prakriti, the nature, gives us. Please join us and thank you so much. Namaste. 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 Sarvebhyo namo namaha. Prakarshena kriyate iti prakritihi, that which is being given to us by the Sat, Prakritireva Satyam. Prakritihi kevalam prasavadharmi. This all you studied in Sankhya. Only the Satyam is only the Prakriti. We are all created. The created is actually Mithya. The original is actually the Prakriti. And you learn from the trees and the rivers and the body there. One beautiful sloka in Sanskrit.
परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकार्थमिदं शरीरम. Actually our body is given by God to do some paropakara, but why we all became swartha. So swarthadam vihaya प्रकृतेः परोपकारत्वं स्वीकृत्य यदि मनुष्याः जीवन्ति अवश्यं प्रकृतिरक्षणं सम्भवत्येव. वाक्षु कर्म न करणीयं, कर्मणि कर्म करणीयं. We are not supposed to speak only the things in words, but we have to put it into practice. There we are successful. We all speak a lot on so many things, but do very less from our side. That is the biggest mistake that which the modern society is doing. So that has to be removed, and we should be there in the action. Then certainly the Prakriti will be brought back. And the very important thing that we have to develop is Paropakara. Paropakaram, if we cannot do, if we are all become so selfish, so swartha, and certainly it will be the end of human race. This much only, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much that you just pointed out. Still, if we want to be there in Prakriti, we should be in Prakriti. Yes, sir. We have to protect him. We have to be in Prakriti. We will get the Prakriti. Very naturally, Yes. in a smallest words, you raise the point, because Paropkaraya Purnaya Papaya Parpitam, in the same concept. Yeah. Swayam na khadanti falani vaksha vari dharo varshati natma heto Yeah. paropkaraya satam vibhutiha. The same thing is there. We are supposed to do better things for the others. Definitely, Yeah. we will get the best result of it. So kind of you, though you joined after a big gap, but you joined and you raised a very high point. This message from our platform will go a long way regarding the maintenance of Prakriti, and of course, all the favors which Prakriti does for us. Thank you Yes, so much. Thank you. Thank you, Namaskar. Namaskar. We are the rare persons here, so we are just going to request Professor, our Adharaniya Professor L.K. Dwivedi ji, please just conclude with few words, so that since all have left, सभी लोग जा चुके हैं, तो हम अपन लोग प्रकृति को नमस्कार करते हुए आपके आशीर्वाद की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं. नमस्कार सर, प्रणाम. नमस्कार सर सभी विद्वत बंधुओं को. और जहाँ प्रकृति की बात आती है तो रसशास्त्र में तो एक तरह से शिव और शक्ति दोनों एक साथ है. अकेला न शिव कुछ कर सकता न शक्ति. तो प्रकृति और पुरुष के आधार सभी पुरुष से प्रकृति बनती है, और हम प्राकृतिक रूप में ही बहुत कुछ अपने आप को स्वस्थ और कर्मठ महसूस करते हैं. और थोड़ा सा भी विकार शरीर में हुआ तो उसका उद्भव करना जरूरी है. और प्रकृति में भी जो हम लोग देखते हैं, तो जैसे अभी चर्चा चल रही थी, तो परमारथ कारण है, तो शरीर तो उसी के लिए दिया है ईश्वर ने. और बाकी हम अपना स्वार्थ निर्वाह पहले करते हैं. ये भी प्रकृति है कि सब मानव प्रकृति में ये एक दोष है. और दोष जो है वही जब प्राकृतिक अवस्था में रहता है तो शरीर को धारण करता है, और जब विकृत होता है तो शरीर का नाश भी होता है. तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि पूरी बनी हुई है. और उसी आधार पे आज के मदर प्रकृति जो नेचर है उसके आधार पे हम देखें तो सब मातृ शक्ति या एक तरह से जो प्रकृति है वही माता है. और उसको उसी तरीके से अगर हम लोग लें और माता के जो गुण आते हैं वो हमको भी लेना चाहिए, और सबको लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत होना चाहिए. ये एक मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं और धन्यवाद. बहुत बहुत प्रणाम सर. आप इतनी देर तक जुड़ते हैं हम लोगों के साथ है. हम हमेशा आशीर्वाद के आकांक्षी बने रहते हैं. तो विषय वस्तु तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से जब उस पर हमें एक टिप्पणी मिल जाती है तो बड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता है, बड़ी खुशी होती है. आपका बहुत बहुत आभार. और इन्हीं शब्दों से आपसे शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. सबका आभार. मैं प्रोफेसर पवन शर्मा जी को फिर से इनवाइट करता हूँ कि वो आज की कार्रवाई को औपचारिक रूप से पूर्ण करने की कृपा करें. प्रोफेसर पवन शर्मा जी. समझते हैं उनको फोन करके बताना होगा कि हम लोग अब वो शायद
निकल रहे हैं। प्रोफेसर पवन शर्मा जी, आपका आज के प्रोग्राम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम लोग 888 में पहुंच गए हैं। आप आज की कार्रवाई को औपचारिक रूप से समापन करने की व्यवस्था करिए। नमस्कार। शुभ रात्रि सर, पवन कुमार शर्मा जी को भी और सभी। Good night, sir. Good night to शुभ all. रात्रि सर, शुभ रात्रि, नमस्कार। Shubhratri, Shubhratri. Thank you very much.